Good morning students. Today we are going to discuss magnetic field due to a current through a straight conductor of same chapter, that is magnetic effects of electric current. First of all, we have to know about the magnetic effect of electric current. In a current carrying wire, when electric current is passed through that wire, then magnetic field is produced around the current carrying wire. That is called as magnetic effect of electric current. Now we are going to discuss about the magnetic field due to a current through a straight conductor, कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर में किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है या किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है। इस सेक्शन में हम इस बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर. वी हैव टू परफॉर्म an activity to know about the pattern. So starts here. This is a current carrying straight conductor. Now a plain paper is set like this. Here now conductor AB is connected to a battery now a key. This is the positive end and this is the negative end of the battery. We know that current flows from positive terminal to negative terminal in a current carrying conductor. Here this AB is a straight conductor, so in this conductor current will flow from A to B, because the end of this conductor A is connected to the positive terminal and the B end of the conductor is connected to the negative terminal. So the direction of current will be from A to B like this, positive terminal to negative terminal. Now in this activity we have to take a compass needle. हमने यहाँ पर एक जो है स्ट्रेट कंडक्टर लिया हुआ है और इस स्ट्रेट कंडक्टर को एक प्लेन पेपर के बिल्कुल सेंटर में इसको क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है लाइक दिस. यस, दिस इज द सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड और प्लेन पेपर. नाउ व्हेन वी प्लेस a compass needle near the straight conductor and we draw the path of deflection of the compass needle, then we find a circle, a small circle. When we place this compass needle far from previous position, पहले से थोड़ा सा दूर रखते हैं, and then we draw the pattern of deflection by the compass needle, then we find again a circle that is bigger one from previous. थोड़ा सा और दूर जब हम कंपास नीडल को यहाँ पर रखते हैं और फिर इसके अंदर होने वाले डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसको ट्रेस करते हैं, देन वी फाइंड अगेन अ लार्ज सर्कल. Here these are the concentric circles.
इन सभी सर्कल्स के जो सेंटर है दैट इज द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये स्ट्रेट कंडक्टर ही इन कंसेंट्रिक सर्कल्स का सेंटर है। एंड वी आर ऑब्जर्विंग, जैसे जैसे आप यहाँ पर इस करंट कैरिंग कंपास नीडल को करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर से दूर ले जाते हैं तो आप पैटर्न को ड्रा करने के बाद पाते हैं कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स धीरे धीरे बड़ी होती जाती, जैसे जैसे आप दूर होंगे वहाँ पर सर्कल्स और बड़ी होंगी। दिस शोज दैट कि एज वी मूव फार फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स decreases, due to which these concentric circles become larger and larger। जैसे जैसे आप नज़दीक रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल जो बनती है वो बहुत ही स्मॉल बनती है, छोटी बनती है। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा दूर मूव करते हैं ये कंसेंट्रिक सर्कल बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर इस करंट कैरिंग कंडक्टर से और दूर जाने पर आप पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंसेंट्रिक सर्किल और भी लार्जर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। Here we can conclude that B, that is a magnetic field is inversely proportional to the distance. Here the distance from the current carrying straight conductor is denoted by small r. So we can say B is inversely proportional to the r, where R is distance from conductor। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो सर्कल्स मिलती है हमको वो बड़ी होती जाती हैं। अगेन second thing is what happens when we increase the magnitude of electric current in straight conductor। अगर आप इस सर्किट के द्वारा इस बैटरी के टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मैग्नीट्यूड को आप इंक्रीज करते हैं देन व्हाट विल हैपन। जब आप करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे देन यू विल ऑब्जर्व दैट the deflection shown by the magnetic needle or compass needle will greater। तो यहाँ पे जो कंपास नीडल होगी उसके द्वारा ग्रेटर डिफ्लेक्शन शो होगा। इट टेल अस दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हेयर वी कैन कंक्लूड दैट B is directly proportional to I। B is directly proportional to I, यानी अगर आप करंट की स्ट्रेंथ को यानी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर विल आल्सो इंक्रीज। आप बढ़ाएंगे तो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर आप करंट की स्ट्रेंथ को घटाते हैं तो करंट को घटाने की वजह से उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन पहले आपने इसके पहले निकाला था कि जैसे जैसे आप करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर से दूर होंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे आप करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के पास आएंगे वैसे वैसे आप पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज होगी। नाउ we can also find the direction of magnetic field around a current carrying straight conductor with the help of right hand thumb rule, right hand thumb rule or Maxwell's
मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। सो मैंने बताया स्टूडेंट्स की करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इनकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल्स कार्क स्क्रू रूल की हेल्प से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट राइट हैंड थंब रूल? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, if we arrange the fingers of our right hand in such a manner that thumb shows the direction of electric current, then rest four fingers will fold in the direction of magnetic field. This is called as right hand thumb rule. इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका अंगूठा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में है तो बाकी की जो 4 फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में रैप होंगी। एंड सेकेंड वन दैट इज मैक्सवेल्स कार्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल्स कार्क स्क्रू रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if the direction of screw is according to the direction of current, then the direction of rotation of screw will show the direction of magnetic field line around a current carrying straight conductor. Means कि मैक्सवेल्स कार्क स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग यदि आप किसी स्क्रू को टाइट कर रहे हैं तो वो स्क्रू की जो टिप की डायरेक्शन है, अगर वो स्क्रू की टिप करंट की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू, तो स्क्रू के रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं राइट हैंड थंब रूल एंड फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। Here the direction of electric current is from upward to downward. So according to right hand thumb rule, the direction of electric current is according to the thumb. So we will place the thumb as the direction of electric current. करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, then यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने थंब को नीचे की तरफ मूव किया क्योंकि करंट की डायरेक्शन नीचे है। Then 4 fingers. Now you have to observe the direction of these rest 4 fingers. ये चारों उंगलियां आप देख रहे हैं that is in the direction of clockwise. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। इस तरह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो कैसी है? क्लॉकवाइज। बट कब? जब इस कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तब उस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? क्लॉकवाइज। यस, ओके। नाउ if the direction of electric current is from downward to upward, then the direction of electric current, direction of magnetic field lines around the current carrying straight conductor. So put your right hand according to the right hand thumb rule. Thumb is showing the direction of electric current, that is upward movement. Now the folding of rest 4 finger is in according to the anti clockwise. बाकी की 4 fingers जो हैं वो anti clockwise direction में move कर रही हैं. So the direction of magnetic field lines around the current carrying straight conductor will be anti clockwise. यहाँ पर आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंड प्रीवियस आपने देखा इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज
डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड होता है देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, हियर क्लॉकवाइज and this one is anti-clockwise. Okay, students, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. इन अ हॉरिजॉन्टल वायर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. This is the point A and this is the point B. Now we have to find out the direction of magnetic field line around this current carrying straight conductor at the point A and at the point B. So on applying right hand thumb rule, the direction of electric current is from east to west. We will place the direction of thumb according to the direction of electric current. thumb को हम करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखेंगे, उसकी डायरेक्शन में रखेंगे. then we will find, हम पाएंगे कि बाकी की जो हमारी 4 फिंगर्स हैं that will rotate in clockwise direction. so हमारा आंसर क्या मिला? क्लॉकवाइज एट ए से आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगी, और जब आप इस वायर के नीचे बी से देखेंगे तो वहां से भी आपको ये डायरेक्शन कैसी दिखेगी? क्लॉकवाइज. एट ए एंड बी पॉइंट मीन्स आपको ए और बी पॉइंट से इसकी जो डायरेक्शन मिलेगी वो क्लॉकवाइज मिलेगी. लेकिन बच्चों ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको मिलेगी, चाहे वो पॉइंट ए पर हो या बी पर हो, ये हमको कहाँ से दिखेगी? ईस्ट डायरेक्शन से. जब हम ईस्ट से देखेंगे ए को तब हमको क्लॉकवाइज दिखेगी, और जब हम 20 पर देखेंगे इसी ईस्ट से, ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर के बी पॉइंट पर जब हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमको दिखेगी. सो ये आंसर आपका जो आया ये फ्रॉम ईस्ट. यस, और जब आप यही डायरेक्शन को, इसी डायरेक्शन को आप वेस्ट से नोटिस करेंगे, यही सेम रोटेशन होगा, इस रोटेशन को आप वेस्ट की डायरेक्शन से नोटिस करेंगे तो यहाँ पर खड़े होकर के आप उसी रोटेशन को ए पॉइंट या बी पॉइंट से जब नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देन यही रोटेशन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा. एंटी क्लॉकवाइज एट ए एंड बी पॉइंट. बट कहाँ से स्टूडेंट्स? फ्रॉम वेस्ट. वेस्ट से. यहां से जब आप ए को और बी को ऑब्जर्व करेंगे तो वही जो रोटेशन उधर से क्लॉकवाइज दिख रहा था यहां से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, चाहे वो ए पॉइंट का हो या बी पॉइंट का. तो इस तरह से हमको ईस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन नोटिस होगा, ऑब्जर्व होगा, और फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से जब हम इसको देखेंगे तो यही रोटेशन हमारा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट. थैंक यू.